नमस्कार। कॉफी बातों के सिलसिले में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। जयनगर में रवि साहब के घर में है कि रवि जी सिर्फ प्लास्टिक की उपयोगिता को कम करने की बात नहीं, बल्कि अपने ही घर के जो प्लास्टिक उत्पादनों को वे फिर से उपयोग करते हुए अपने घर की शोभा भी बढ़ा रहे हैं और साथ में प्रदूषण की मात्रा को कम भी कर रहे हैं। आइए हम रवि जी से मिलते हैं और उनसे ही प्रश्न पूछ लेते हैं। नमस्कार। आपको यह करने के पीछे क्या लगा और क्यों आपने इतने सारे पुराने वाटर बॉटल को या प्लास्टिक चीज़ों से इतने सारे काम करके हमारे लिए उदाहरण बन गए हैं? One thing is that basically I used to see a lot of waste which was happening everywhere, including the residences. I was just thinking, why should we just waste all these bottles which have been used and thrown out? Okay. So I was just thinking if I can give a second chance to those items. So looking into that, I thought one day, why can't I give some ideas and generate it and give some drawings. Correct. Made some drawings, gave some life to it, and I thought it can look something like a small pot. A bottle can be converted into a small pot, something like that can be done. So that's how I started doing for each one of it. And majorly, I thought I think I used major time portion during the lockdown time, Correct. wherein I got more time during those lockdown times because I had a lot of time during that time. I did not wanted to waste those times during that time. Correct. So I utilized those times and then complete all these activities. तो वे स्पेशली एक काम उन्होंने लॉकडाउन के समय में बहुत संपन्न करने की कोशिश किया है और लॉकडाउन के बाद अब नौकरी करते हुए भी फिर से वे अपने काम चालू कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही उनको सहर्षपूर्वक हमें अभिनंदन देने वाली बात रही है ना। उनके द्वारा तैयार की गई कुछ वस्तुओं को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और एक पुराने बोतल से लेकर एक घर में जो फेंकने लायक पाउडर की डिब्बे को भी वे फेंकते नहीं, उससे भी कुछ एक नया एक वस्तु या अलंकरण वस्तु बनाते हैं। तो उन सब को मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और उनके घर में जो कुछ छोटा सा आंगन है उसको भी वे अच्छी तरह से इतना उद्यानवन जैसा बनाया है, उसको भी हम एक बार आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आइए हम एक एक वस्तु के बारे में देखते जाएंगे और सर एक्सप्लेन करेंगे। ये एक वाटरफॉल है, ओह। इस वाटरफॉल which has an aquarium. Water goes in and again comes to the same place. Recycling. This is oil tin. You should have seen there are many oil tins which gets wasted. Okay. So I tried to give a life to this oil tin once completed. So it's something like a used bin. You can keep any required items inside and use it as it is. This is basically which has been done from a Maaza bottle. So many Maaza bottles gets thrown out. So I just took that Maaza bottle and I tried to give a life to it. Correct. You can see it's something. It works as a night lamp. It works like Nice. this. Nice, very nice sir. And this was just one box, you can say a cardboard box. Cardboard box was a conical cardboard box. I gave a life to it by putting the threads onto it and curling it. You can see a bottle here. This is a thrown waste bottle which was thrown out. So I just took that and gave a life to it like this. These things if you see, these are all, I have used it from a waste pipes. Waste pipes, I have used it and I have given life using it as a mobile holder. Okay. These bottles are the honey bottles what we use and throw. Okay. So for them I have given a life. उनको आपने एक नया आकार ही दिया है। ये वाला, this is waste pipes what I had got. So Okay. those pipes was used and it
can be used as a flower pots. ओके ओके। And एक भी प्लास्टिक बोतल को आपने फेंकने की कोशिश नहीं किया है। और देखिए ये तो this is like a, you can keep all your stationery. Multi-purpose. You can keep your pencils, pens, or brushes, something like that. करेक्ट करेक्ट। As you told, these are like powder bottles. These two. सिर्फ पाउडर होते समय वे सुगंध नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी वे बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। Similarly, all these bottles. जूस का जो आपी बॉटल लगता है ना, Happy bottle. ये आपी बॉटल को भी आपने एक नया आकार दिया है। These things, if you see, this is all these what you call the waste material which was used for the shampoo bottles and all. शैम्पू बॉटल, Yeah. शैम्पू बॉटल को आपने फेंके नहीं, बिना उसको एक डिब्बा जैसा बनाया, मोबाइल भी रख सकते हैं या पेन स्टैंड के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये वाला जो दिया है बनाया है, these are the waste cut pipes. Cut pipes. Used for the gardens. ओके, पौधों को लगाने के लिए जो पाइप्स को कट किया था उसको आपने एक वॉल हैंगिंग के रूप में डिज़ाइन किया है। बहुत सुंदर नज़ारा है। और देखिए एक छोटा सा एक एग्जीबिशन से कम नहीं, आपने इतने सारे प्लास्टिक से ही बनाई गई। देखिए बहुत सुंदर है। अब हम उपवन में चलते हैं। ये तो फाउंटेन ही निकला है, प्लास्टिक वाटर बॉटल से बना हुआ फाउंटेन है। तो अब हम गार्डन एरिया में जाएंगे। This is a Pepsi bottles again. पेप्सी बॉटल को आपने इमोजीज के रूप में भी ड्रॉ किया है। यस, आगे हो गई। These are the gutter pipes. गटर पाइप्स को आपने ऐसा कट करके बहुत सारे पौधे इसी का लगाए। जो कट पाइप ओ वही आपने वॉल हैंगिंग के रूप में बनाया। तो बहुत कम जगह को आपने इस्तेमाल करते हुए इतने सारे पौधों को लगाया है। ये तो बहुत अप्रिशिएबल काम रहा है सर आपका। ये एक पेप्सी बॉटल। पेप्सी बॉटल का एक आपने लाइट इसके अंदर फिट कर दिया है, बहुत अच्छी आगे तरह आगे से। ये वाला आगे बैम्बू को भी कट करके आपने एक दूसरे के साथ टंगा दिया है और बहुत कुछ पौधों को इसके अंदर लगाया है। और रवि जी की पत्नी गीता मैडम कहती है, और आजकल गर्मियों का अनुभव ही वे लोग बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि घर में जहाँ देखो वहाँ पौधे ही पौधे हैं और हरियाली से भरा हुआ वातावरण है। तो वह कहती है कि मुझे ऐसा कभी नहीं महसूस होने लगा है कि आजकल हम गर्मियों में हैं। तो क्योंकि बहुत कम जगह को भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है और जहाँ भी देखो वहाँ आपको हरियाली नज़र आती है। बहुत सुंदर बात है ना। दो गमलों को मिलाकर एक गुड़िया जैसा आकार भी उन्होंने दिया है। कम जगहों को उपयोग करते हुए पूरे घर को किस प्रकार हम सजा सकते हैं। इधर जो देख सकते हैं ना, ये जो हम ऑर्डर करके जो भी जोमेटो से या कुछ फूड ऑर्डर करवा कर लाने वाले जो भी डिब्बे हैं, उनको भी वे इधर उधर फेंकते नहीं, उनको अच्छी तरह से पेंट करके फिर से उनको इस्तेमाल किया है और उनको नया आकार दिया है। तो यही हम सबको सीखना है आज से, और हमारे घर में जितने भी कम जगह क्यों न हो और उसको हम सदुपयोग कर सकते हैं।
घर के पास जितना भी कम जगह है उसको भी एक एक इंच भी वे व्यर्थ होने नहीं दिया। और बाहर से ऐसे देखते हैं तो देखिए हर एक वाटर बोतल को उन्होंने अच्छी तरह से रंग से भरकर और उसके अंदर भी छोटे छोटे पौधे लगाई है। जहाँ भी देखो वहाँ प्लास्टिक बोतल से उपयोग करते हुए उन्होंने सजाया है। तो घर का पूरा वातावरण ही हरियाली में उन्होंने बदल देने। देखिए सर ये वाला कौन सा वाटर बॉटल है? ऑयल कैन से आपने इतना सुंदर आकृति बना दिया। और इधर भी देखिए हम्स जैसा लगता है, फल बॉटल से बनाया है, तो बहुत सुंदर है सर। फिर से ये सब तो वाटर बॉटल ही है ना, 2 लीटर वाला वाटर बॉटल को उन्होंने अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है। और पोल्का डॉट्स वाला भी इधर हमारे लिए देखिए कितना सुंदर है। तो एक से बढ़कर एक किया है, इसके लिए बहुत सहनशीलता की भी आवश्यकता है और हमारे लिए क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत है। सर आपसे मिलकर बेहद खुशी हो गई और गीता जी से भी मिलकर। आप दोनों ने ऐसा घर को इतनी सुंदर बनाई। आप सरल ढंग से ही काम शुरू किया और बहुत लोगों के लिए आदर्श बन गए हैं। आप एक ऐसा मिसाल आज बनाकर दिखाया है कि कोई भी आज से एक प्लास्टिक बॉटल वे फेंकना नहीं चाहते हैं, तो वेस्ट नहीं होना। क्योंकि हमारे लिए बात तो हम करते हैं कि जब हम वो बात आई, हर महीने हर घर में प्लास्टिक बोतलों की जो संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसको कम करने के लिए और हरियाली को ज़्यादा करने के लिए आपने जो जो उदाहरण दिया है, सब लोग अगर उनका अनुकरण करेंगे तो हमारे लिए भी बेहतर होगा। तो आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और मैं आपके लिए एक छोटा सा उपहार देना चाहती हूँ। ये खुद मैंने वाटर बॉटल से बनाया है और गीता मैडम को देती हूँ।